This is the biggest problem in the Indian education system. योगा का मिला साथ, इंडियाज योगा गर्ल। क्या बात, क्या बात, क्या बात। जब मैं सीए कर रही थी, आई रियलाइज कि बहुत सारे सीए एस्पिरेंट्स, सीए प्रोफेशनल्स डिग्री के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, बट दे आर सैक्रिफाइसिंग देयर हेल्थ। स्पेशली दिस हसल कल्चर जहाँ पे लोग फ्लेक्स कर रहे कि आज मैंने 15 घंटे काम किया है, मैं सोया नहीं हूँ। दिस इज नॉट समथिंग टू फ्लेक्स अबाउट, दिस इज नॉट समथिंग टू ब्रैग अबाउट कि तुम बहुत मेहनत करो। आई फील इट इज, ये बेवकूफ़ी है। मेरी लाइफ आई वुड से 70 to 80% मैंने लाइफ में जो भी किया है या फिर जो भी अचीव किया है, इट हैज़ been because of manifestation, and that is how I started teaching yoga. And that was the time when Hrithik Roshan, he's supposed to happen to repost one of my yoga pictures. उसके बाद I got a lot of opportunities for yoga. I was on India's #1 business channel, I think last year on International Yoga Day. As a kid, you were an introvert, and I don't believe it. After seeing all your videos, podcasts, what changed from introvert to extrovert? And other than finance, what other skill sets you will recommend for young chartered accountants? In a world where most follow one path, she chose to walk many with purpose, poise, and passion. A chartered accountant by profession, a wellness coach by mission, and a storyteller by soul. If I have to put in my style, I will say numbers की गलियों में आया एक मोड़, ऑडिट, अकाउंट्स, टैक्स की राह को दिया छोड़। नंबर्स की गलियों में आया एक मोड़, ऑडिट, अकाउंट्स, टैक्स की राह दी छोड़। चुन ली राह पैशन की, योगा का मिला साथ। चुन ली राह पैशन की, योगा का मिला साथ। इंडियाज योगा गर्ल। क्या बात, क्या बात, क्या बात। From guiding professionals on wellness to building Profiro with intention to having Hrithik Roshan himself share her yoga pose, she is living proof that you stay true to your core. The world notices. Today on CA Unplugged, we have India's yoga girl, a CA, a creator, a coach, and a change maker. Welcome, CA Surbhi. Thank you so much, sir, for having me. That was a lovely introduction, and it is my pleasure to be here. It's always a pleasure. Let me start with the first question when we are researching about you. I heard as a kid you were an introvert, and I don't believe it. After seeing all your videos, podcasts, what changed from introvert to extrovert? How it happened? So, as a kid, I was very shy. I hardly had any friends. I did not speak to a lot of people. I was born in a typical Marwadi family, and I was always taught to behave in a particular way. You need to do this relatives के सामने, ऐसा नहीं करना है, ऐसे behave करना है. And I felt that somehow made me a very shy introvert kid. I could not express myself. But then when I realized that अगर आप बोलोगी नहीं, if you don't communicate to people, if you don't talk to people, लोगों को आपकी existence नहीं पता चलेगी. And if you genuinely want to build something, you want to create an impact, you will have to talk, you will have to meet people, you will have to network. So that realization hit me कि यार people maybe with less skills but with good communication skills, being extrovert, they are getting more opportunities. So that is how I started कि अब I asked myself कि मुझे ऐसा क्या है कि what is scaring me. So I came out of that bubble and I started approving myself more, started going out to people, started talking, और मुझे realize हुआ कि यार ये चीज़ इतनी difficult भी है नहीं जितना अपन mind में create कर लेते. So that is how from being an introvert I became an extrovert. Any particular incident just triggered कि नहीं ये हुआ, it hit me and then I became from introvert to extrovert? So there was this one particular session and I was in 8th grade. उस session में it was a mindset session. And he taught, कि कैसे सोचना है, memory techniques क्या क्या होनी चाहिए to remember something long. And that session, for one session, I paid 7,000 rupees. I realized कि he's just talking, he's just sharing his knowledge, something that I feel that if you're a good communicator, anyone can do it, and he's making money out of it. So I was sitting on that chair and I realized that is the place where I want to be, which is the stage. I have audience. People are ready to pay. People are listening to you. You just need to be so good that people pay you for that time and that knowledge. So उस time I decided, this is something that I want to do and I'm going to make this happen. So 2 M's resonate with you. Marwadi and money brought you to this कि हाँ मुझे भी बात करनी है. It's perfect. CA by profession, yoga by passion. How exactly this combination happened?
सो सीए मैंने इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मेरे पापा को सीए बनना था एंड ऑफ कोर्स एज यू सेड मारवाड़ीज के खून में ही पैसा होता है। ये था कि सीए बन जाते हो तो तुम्हें बहुत पैसा मिलता है, एट द सेम टाइम इट्स अ वेरी रेप्यूटेड कोर्स। तो सपना पापा ने देखा था सीए बनने का, बट आई फील दैट उसे पूरा मैंने किया एंड सीए गिव मी दैट ability to think big and it made me so much disciplined। जैसे आप अगर पढ़ाई करते हो, a CA student really studies for like 13 to 14 hours a day, डिसिप्लिन में रहना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, he has to make sure that अकेले रहना सिखा देता है। So a lot of things CA has taught me, but coming back to yoga, so like long back, almost 16 years back, my mother had met with an accident and that time there was some stone, she was walking on the road and she could not realize it and she fell down। तो सारे डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा एंड आई वाज वेरी यंग, मे बी 6-7 years। एज पेरेंट्स वो डर जाते हैं कि बच्चे को अकेले कैसे छोड़ दे एंड मे बी एट दैट टाइम पेरेंट्स वांट टू बी विद देयर किड्स, बट देन सब डॉक्टर्स ने बोला ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, बेड रेस्ट पे रहना पड़ेगा 2-3 महीना। शी गॉट स्कैर्ड। सम फैमिली रिलेटिव ऑफ हर सजेस्टेड दैट यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा and that is how she started doing yoga। I started accompanying her to her yoga classes। I started my yoga journey। I was very much into athletics, sports, school mein very active with physical activities। So coming during COVID, that was the time when I started teaching yoga and started creating content around it। So when I started creating content, आई ऑलवेज हैड दिस इन माई माइंड कि मुझे लोगों को योगा बहुत इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करना है। पीपल समटाइम्स सी योगा एज बोरिंग, स्लो, मे बी ओनली फॉर एल्डरली पीपल, बट आई फील दैट दिस इज समथिंग दैट इज फॉर एवरी वन, बच्चे से लेके एल्डरली पीपल तक। So I started creating content and I started posting it on social media। It was very unique yoga pictures। People started liking it। I started getting inquiries and that is how I started teaching yoga। And that was the time when Hrithik Roshan, he's supposed to happen to repost one of my yoga pictures। उसके बाद I got a lot of opportunities for yoga। I was on India's #1 business channel, I think last year on International Yoga Day। I did events with Reliance। So it has been great। I feel yoga ने मुझे शांत रहना सिखाया है और सीए ने मुझे डिसिप्लिन और मेहनत करना, जिद्दी बनना, कोई चीज चाहिए उसके पीछे दौड़ना सिखाया है। एक चीज आपने बहुत इंटरेस्टिंग बोली, योगा यू आर डूइंग थ्रू यंगर एज, क्योंकि मदर इल हुई उसके बाद आप यंग एज में कर रहे थे, यू आर पैशनेट अबाउट इट एंड इट वाज फादर्स ड्रीम कि आप सीए बने। हाँ। जब फादर ने ये बोला, व्हाट वाज गोइंग थ्रू इट, बिकॉज यू वांटेड ऑलवेज, यू वर पैशनेट टुवर्ड्स योगा, ever you said to him, no, I want to be a yoga professional, want to pursue my career, or when he said it was my dream, aap pura karo, you directly accepted it, you went through a turmoil, or it was straight decision? So honestly उन्होंने प्रेशर नहीं किया था, बट आई फील इंडियन फैमिलीज में देयर इज ऑलवेज दिस अनस्पोकन प्रेशर, लाइक तुमको जो करना है करो, बट स्टिल करो प्लीज वही जो हम चाहते हैं। तो 12th के बाद आई वाज अ बिट कंफ्यूज्ड कि इसमें एक्चुअली करियर बिल्ड करना अदर एक्टिविटीज में, समथिंग विच इज इनटू परफॉर्मिंग आर्ट्स, इट इज डिफिकल्ट। यू नीड टाइम, यू नीड ग्रेट स्किल्स, यू हैव टू बी द टॉप 1%। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यू माइट नॉट फाइंड अ पाथवे कि ऐसा ऐसे करो यहाँ पहुंच जाओगे। जैसे सीए में है ये बुक्स पढ़ो तुम्हें डिग्री मिल जाएगी, बट ये चीज़ों में ऐसा नहीं था। सो आई वाज कंफ्यूज्ड। सीपीटी का लास्ट डे था रजिस्ट्रेशन का, तो मैंने सोचा रजिस्टर कर लेते, अगर हुआ तो ठीक, नहीं तो वैसे भी नहीं करने वाले थे। तो पापा मुझे लेके गए क्लासेस और वो क्लासेस वालों ने मेरा ब्रेन वॉश कर दिया कि सीए इज बेस्ट कोर्स फॉर गर्ल्स, तुम शादी कर लोगे फिर भी यू कैन प्रैक्टिस, पैसे कमा सकते हो एंड एवरीथिंग, एंड एनरोल कर रही हो और फर्स्ट लेवल जो था वो क्लियर हो गया। तो उन्होंने कभी प्रेशर नहीं किया था, बट उनका ये सपना था कि मेरे बच्चे बने। अगर मैं नहीं कर पाया, बिकॉज ही हैड टू शिफ्ट टू बॉम्बे फ्रॉम राजस्थान एट एन अर्ली एज एंड ही स्टार्टेड वर्किंग हियर, सो उनको हैड दिस इन माई माइंड एंड आई एम वेरी वेरी क्लोज टू माई डैड। सो मुझे भी ऐसा था कि अब मैंने शुरू किया है तो मुझे इसको खत्म करना है, एंड उसके बाद ऑफ कोर्स आई विल डू वट एवर आई वॉन्ट। बट पेरेंट्स को जब एक डिग्री तुम पकड़ा देते हो ना, नाउ दे आर सिक्योर्ड कि हाँ चलो मेरा बच्चा स्मार्ट है। So I feel CA gave that। एक क्वेश्चन और पूछूंगा, सीए इज अ टफ कोर्स, यू एवरीवन सेज दैट। कभी ऐसा लगा व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द जर्नी कि पापा के कहने पे आई हैव टेकन इट, बट
ये नहीं हो पाएगा, आई हैव टेकन द रॉन्ग डिसीजन? ओह माय गॉड, बहुत बार लगा। एंड स्पेशली जब आप स्टार्ट उस माइंडसेट से करते हो कि यार सी मुझे करनी नहीं थी कभी, बस फर्स्ट लेवल क्लियर हो गया, सेकंड लेवल में आ गए, अब यहाँ करनी है, अब यहाँ क्लियर नहीं हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में। सो ऑफ कोर्स आया था कि इज दिस द राइट कोर्स फॉर मी, शुड आई क्विट, शुड आई डू समथिंग एल्स, समथिंग वेयर माई पैशन लाइज। आई वाज वेरी मच इनटू सिंगिंग, योगा, पेंटिंग। बट देन आई रियलाइज कि जो चीज़ शुरू की है ना उसको ख़त्म करना है। नहीं तो अगर मिडवे छोड़ देते हो ना तो कहीं न कहीं आई फ़ील कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा ब्रेक डाउन हो जाता है। एंड आई हैव ऑलवेज़ बीन दिस ज़िद्दी बच्ची, स्टबर्न, कि अगर कुछ सोचा है तो करके ही रहना है। सो आई थिंक दैट माइंडसेट अलोंग विथ कि लाइक अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट आई एम स्मार्ट और मेरे से हो जाएगा, तो उनको भी दिखाना था करके कि आई कैन डू इट। I can do it. What was your father's reaction when you cracked it and you said, when you clicked that button, saw yourself as a chartered accountant now? उनका क्या reaction था? So I had this habit of recording moments, recording precious moments जो शायद वापस लाइफ में कभी नहीं आएंगे। तो मुझे अपना सीए का रिजल्ट रूम में अकेले चेक करना था। सबको पता चल गया सीए रिजल्ट आने वाले, जो टाइम आने वाला था उससे पहले आ गए थे रिजल्ट्स, 2 घंटे पहले। तो मैं सो रही थी, मम्मी आई, मेरी फ्रेंड का फोन आया, तेरा हुआ क्या? मेरा एक ग्रुप हो गया। एंड आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, आ गए रिजल्ट, तुम उठ रहे हो और तुम्हें पता चल रहा है कि रिजल्ट्स आ गए। देन मैंने सबको मेरे घर में पूछते नहीं है, बिकॉज पीपल आर लाइक ठीक है, लेट हर बी अकेले। तो सब बाहर थे हॉल में और मैं रूम में, आई वाज जस्ट, मैंने रूम लॉक कर दिया और मैं रिकॉर्ड कर रही थी। लाइक कैमरा यहाँ पे था, लैपटॉप यहाँ पे था, रोल नंबर की शीट एक तो मिल नहीं रही थी। आई जस्ट डिड दिस टिक टिक टिक, आई फाउंड, एंड इट वाज लाइक पास पास। जब सी का बच्चा सिर्फ वो 2 वर्ड के लिए जीता है, आई फील पास पास, एंड आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग। व्हेन आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग, मेरे घर वालों को लगा दैट इसने इतनी मेहनत की है, इसलिए चिल्ला रही बिकॉज ये क्लियर नहीं हुई। दैट इज वेरी क्वाइट ये कि वेरी मेमोरेबल मोमेंट। एंड देन आई एम लाइक शाउटिंग सीए सीए सीए, सबको लग गया कि भाई क्या हो गया, क्या हो गया। बट देन इट वाज वेरी वेरी, दैट मोमेंट स्टिल स्टेज विद मी। एंड जब भी मुझे लाइफ में कुछ लगता है कि यार इससे ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं हो सकती है, या आई एम स्टक समवेयर, आई रिमेंबर दैट टाइम कि यार उस टाइम मुझे लग रहा था कि वो बहुत डिफिकल्ट है। आई कुड, इफ आई कुड डू दैट, समवन जिसको सीए कभी बनना भी नहीं था, अगर मैं वो कर सकती हूँ, देन आई थिंक, आई फील कि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ईजी लगने लगती है। मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ कि फादर की रिएक्शन का क्या था जब उनको पता चला कि आप क्रैक कर गए। तो ऑफ कोर्स ही वाज वेरी हैप्पी। वो एक रात पहले मंदिर जाके आए थे, प्रे करके आए थे। एंड जब नेक्स्ट डे जब रिजल्ट आया, ही स्टार्टेड क्राइंग। बट उनकी आदत नहीं है कि बच्चों के सामने एज मेल दे डोंट एक्सप्रेस देयर इमोशंस, बट ही हैड वाटरी आईज। सो या, इट वाज वेरी वेरी स्वीट, आई वुड से। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। When you decided I will not pursue as a traditional practice of CA and now I'll go into yoga and other stuff during COVID, जब आपने स्टार्ट किया और पेरेंट्स को बताया कि मैं इसमें परस्यू करूँगी, आई विल ट्रैवल वर्ल्ड ऑन योगा, नॉट डूइंग ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, या मैं कहीं जॉब नहीं ले रही हूँ इन द बिग फोर्स या इन एनी ऑफ द एमएनसीज, व्हाट वाज देयर रिएक्शन? आई वुड से दैट कमिंग फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली, हमें ना बचपन से ये ब्रेन वॉश किया जाता है कि जो भी करना है लाइफ में खुद का करना है, या खुद का बिजनेस करो, खुद का काम करो, खुद का नाम करो, किसी के अंडर काम मत करो, विच कम्स विद द मारवाड़ी, सबका बिजनेस बैकग्राउंड होता है। माई फादर हैज अ बिजनेस बैकग्राउंड, सो ही ऑलवेज टोल्ड मी कि यार डू वट एवर यू वॉन्ट, बट खुद का करना। इवन इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ प्रैक्टिस, स्टार्ट, बट जस्ट मेक श्योर दैट टेक सम एक्सपीरियंस फॉर सम ईयर्स एंड डू समथिंग ऑफ योर ओन। बट देन आई रियलाइज कि जब आगे जाके, शायद मैं अभी 22 में आई क्लियर सीए, अब मैं अगर 26 साल में सोच रही हूँ या 27 साल में सोच रही हूँ कि काश मैंने कुछ और कर लिया होता या योगा कर लिया होता, तब आई फील इतना जो टाइम का जो लॉस हो जाता है। आई थॉट दैट आई विल टेक दैट रिस्क, आई विल टेक दैट प्लंज पहले ही। एंड माय पेरेंट्स, दे डिड नॉट प्रेशराइज मी एट ऑल, आई वुड से। दे आर वेरी, पापा को बस सीए की डिग्री चाहिए थी, उसके बाद जो करना है कर, दुनिया घूमनी है घूमो, योगा करना है करो, मेक मनी, बिल्ड योर ओन लाइफ। बट आई फील कि उनको आज भी वो सबको ये बोलते कि मैं सीए का बाबू, भले इफ आई एम, इवन दो आई एम नॉट डूइंग अ कॉर्पोरेट जॉब, but he is very proud of me because I've done so many events with ICI. I do something of my own every morning. वो सबसे पहले उठ के मेरे YouTube subscribers check करेंगे. So I'm very, it's like my, I've hit the jackpot when it comes to my parents and my father. That's so lovely to hear about that. आपको ट्रैवल पसंद है, जो मेरे को समझ में आ रहा है।
how many what is in your bucket list जो अभी तक आपने ट्रैवल नहीं किया है लेकिन यहाँ तो जाना है जय, I want to go these places and it's on my bucket list. So I love places with peace, nature, beauty. Two of them I would say is one is Maldives. I feel that is very pretty, and the second place is Bali. I want to conduct a yoga retreat or some yoga workshop in Bali. So maybe someday that would really happen. क्या लगता है you were into yoga because COVID happened? Otherwise, you would have taken a traditional practice. कि नहीं, COVID was not the reason, because I have seen COVID brought transformation in many people. True. Do you think yes, COVID happened and that brought the transformation in you, becoming a India's yoga girl, or it was no, it was bound to happen with or without COVID? जब कोविड आया था, that was the time I felt that people realized the importance of health. People realized the importance of a healthy mind and the healthy body. सब अकेले रूम में थे, अकेले घर पे बैठे थे. People were stressed, काम का प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर, बट लोगों को एक हेल्दी बॉडी की इंपॉर्टेंस समझ आ गई. एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग योगा, बिकॉज आई हैड द टाइम एंड बिकॉज आई हैड द स्किल. जो मेरा आर्टिकलशिप चल रहा था वो भी मेरा वर्क फ्रॉम होम था. So I used to teach a couple of people from my building, from my society. Of course, I realized one thing, that us time pe when people are losing their loved ones, people are actually, they would do anything to be with them. That was the time when I felt that ये जो चीज़ है health is such an underrated thing. लोगों को स्कूल में नहीं सिखाते हैं, ऑफिसेज में नहीं सिखाते हैं. India is producing successful professionals, but it also needs to produce sustainable professionals जो आगे long term तक sustain कर पाए. So when I started teaching, I realized जो मेरे corporate clients थे, they have slouching shoulders, body में back pain है, 30-40 years and still knee में pain है, shoulders में pain है, and I realized कि यार this is a huge market. Somebody needs to do something about this, and I need to do something about this. So and I have that passion and that inclination towards coaching. So I started teaching, and of course I would say that COVID की वजह से I got the time to explore this side of my career, and that led me to something incredible in my yoga journey. क्या बात है. So, Does the number of subscribers जब आपने start की journey, because COVID था, you started on YouTube platform or other social platforms, does anytime it disheartened you seeing number of viewers not going up, number of subscribers not going up? ये इतना important था कि it was something which is that कोई देखे ना देखे, I'll continue to create videos for yoga and health for India. so honestly speaking, numbers have never affected me. अगर एक इंसान भी देख रहा है ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि उस इंसान को इतना वर्थ इट लगा कि वो मेरा कंटेंट दे रहा है, उसका टाइम दे रहा है. आई फील पैसे से ज्यादा किसी का टाइम ज्यादा वैल्यूएबल है. सो व्यूज नेवर अफेक्टेड मी. आई ऑलवेज हैड दिस, मुझे बस करना है. अगर कोई क्लिक हो गया, सोशल मीडिया वर्क्स ऑन वायरलिटी. इफ वन वीडियो पिक्स अप, इट पिक्स अप. तुम करते जाओ, some viral thing will happen. So numbers did not affect me, but of course it's a great motivating factor. तुम्हारा बढ़ता जाता है numbers, you want subscribers बढ़ते, you want to put more content, you want to be in front of the camera. Initially hesitation बहुत होती है, but then I feel over the time when you show your real self to the world, people actually accept you, because that is the time when they feel that you are relatable to them. जब आप अपनी स्टोरी शेयर करते हो, अपनी जर्नी शेयर करते हो, तो देन पीपल विल डेफिनेटली फॉलो यू कि यार ये तो मेरे जैसे ही है, इसकी लाइफ में भी सेम प्रॉब्लम्स है, अरे इसने ऐसे किया था, ऐसा हुआ था. So I think that is how one can increase a community and build in numbers. But initially I would suggest that don't fall for numbers. Don't fall for numbers. What was your reaction जब ऋतिक रोशन ने आपके पोस्ट को शेयर किया? Were you on cloud 9? I was on cloud 99. So जैसे ये, so actually इसका ये था कि he has this brand HRX, which is into fitness and workout outfits. So I had worn a dress ऋतिक रोशन के ब्रांड की HRX की, and I clicked one yoga picture that was very magical. Everyone felt that ये possible ही नहीं है, this is impossible, this is edited, ये कुछ tie किया हुआ है, there's some hack with this pose. I'll maybe if you can share, I'll share that picture. And people thought that ये हो ही नहीं सकता, और वो HRX के आउटफिट में किया था. So that actually had a very very sense, and that picture was very real. He liked it. HRX shared it with Hrithik Roshan. Hrithik Roshan loved it. He shared it on his Instagram story. I actually, to be honest, that was also the moment when I felt कि यार
when you get that recognition from a celebrity, you're like, यार मुझे अब ये और करना है. So that also gave me a push कि यार I want to continue yoga. Cloud 99. There will be low moments as well in life. What was that low moment? कुछ बताना चाहेंगे कि कभी low moment भी आता है जय, और ऐसी situation आती है तो we feel low about it, and then what you did to come out of it? जब मेरा CA का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ था, आई थिंक तब ऐसा लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया है. तब लगा था कि यार अब लोगों को क्या शक्ल दिखाएंगे, घर वाले रिश्तेदार सब इतनी सारी पूछेंगे, इतनी सारी चीज़ें पूछेंगे कि क्या हुआ एग्जाम में, और जब ये बोलेंगे ना नहीं हुआ, एक वो डर रहता था. तो जब ऐसा हुआ था, आई फेल्ट दैट आई फेल एज अ पर्सन. दुनिया खत्म हो चुकी है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. बट देन आई रियलाइज वन थिंग, द ओनली पर्सन यू आर अकाउंटेबल टू इज योर सेल्फ. जब आपने अपना 100% दिया ना, अब भगवान पे छोड़ दो. अब चाहे जो भी कोई भी सोचे तुम्हारे बारे में, नथिंग शुड बॉदर यू, बिकॉज तुम्हें पता है यू गिवन योर बेस्ट. तुम्हें पता है कि आपने कितनी मेहनत की, कितने सैक्रिफाइसेस किए. अनलेस एंड अनटिल यू डिड नॉट गिव योर बेस्ट, तो डेफिनेटली यू शुड बी गिल्टी. बट जब आपको पता है कि आप इससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते थे, तो लोग क्या सोचे मुझे फिर उससे फर्क ही नहीं पड़ता है. लोग ऐसे होते हैं ना कि आज तुम्हारे बारे में सही नहीं सोच रहे, कल तुम कुछ बहुत बड़ा उखाड़ लोगे तो अपना बोल देंगे कि ये तो मेरी भतीजी है, ये तो मेरा भांजा है. सो दैट नेवर लेट दैट अफेक्ट यू. एक चीज में मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ कि जब जिद्दी होगा दिल, जरूर मिलेगी मंजिल. तो जब तुम कोई चीज की जिद पकड़ लेते हो ना, तो और उसके पीछे अड़ जाते हो ना, तो भगवान भी देख रहा है तुम्हारी मेहनत, एंड ही विल डेफिनेटली गिव यू. फेल हो गए, रियलाइज अंडरस्टैंड कि ना कहाँ पे गलती हो गई, करेक्ट इट in the next time and just give your best. I loved the line, जिद्दी होगा दिल तो जरूर मिलेगी मंजिल. दिल अपने साथ रहता है. Yes, we have that confidence. Do you think you need a buddy in the journey? एक friend, एक ऐसा partner, not जरूरी नहीं है family part, अपना life partner हो, एक friend which can be your punching box, जहाँ पे you can go and outspoke everything that is required in life. I feel friends are therapy. अगर सही दोस्त आपको मिल गए ना, you've hit a jackpot. तो of course friends play a very important role in your career, in your mindset. ये जो बोलता है कि जैसे लोगों के साथ आप रहोगे वैसा ही mindset होगा, ये बहुत ट्रू है. इंडियन फैमिलीज में बच्चे अपने पेरेंट्स से, और आई वुड से इवन मी, बच्चे अपने पेरेंट्स से इतने क्लोज नहीं होते, वो इतनी चीजें शेयर नहीं कर सकते. बट इफ यू हैव अ फ्रेंड जिसको आप बिना सोचे कुछ बता सकते हो, एंड यू ऑल्सो नो दैट पर्सन वॉन्ट्स द बेस्ट फॉर यू, वो आपको जज नहीं कर रहा है, देन डेफिनेटली देयर इज नथिंग लाइक इट. तो friends play a very very important role in your career. In fact, when I started my CA journey, I had a few friends जिन्होंने मुझे इस पूरी जर्नी में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर शायद वो एक दो लोग नहीं होते तो मैं डेफिनेटली CA नहीं होती. तो फ्रेंड्स हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि उस इंसान को आप पे इतना भरोसा होता है जितना शायद आपको नहीं होता है. और तब आप ये सोचते हो कि यार ये इंसान मेरे लिए इतना सोच रहा है, he or she whoever it is, they have so much faith in you that you want to give your best. तो दोस्त मिल जाए तो आई फील आप कुछ भी कर सकते हो, सही दोस्त मिल जाए तो. ऐसे एक दो फ्रेंड का नाम लेना चाहेंगी जो ऐसे मिले, जो CA जर्नी में भी साथ में, आज भी साथ में है, और दुबई में भी साथ में, और दुबई में भी साथ में, ऐसे कोई? So there's this one friend of mine, Hena, and she has been my friend for the last 10 years. We were together in college. She has literally seen me from like college kid to now being here in Dubai. She's accompanying me. She's staying in a hotel. I feel she is my human diary. She knows everything about me. She also looks after my collaborations, my content creation. She would guide me, Subi aise kar, this is not looking nice, maybe this is, just go for it. Even if I am doubting dalu nahi dalu, she's like, this is so good, best hai, viral hoga, just put it. So I feel that really helps me, and she'll give me a reality check. Agar nahi hai sahi, she'll tell me honestly. So agar honest real friends hai, I feel you've hit a jackpot, and I definitely have hit one. कभी ऐसे फ्रेंड्स के साथ झगड़े भी होते हैं, जैसे हिना के साथ झगड़ा होता है कि नहीं, आई डोंट वांट टू सी यू नाउ? I feel झगड़ा तो नहीं होता है, there's this maturity and understanding, but maybe some disagreements हो सकते हैं, you should have done something like this in a particular way, और मुझे ऐसी चीजें ऐसी करनी चाहिए. उस टाइम के लिए शायद तुम्हें लगे कि दोनों अलग अलग है, बट एट द एंड यार अगर दोस्ती प्योर है, दोस्ती है, तो यार यू आर मेंट टू कम बैक टुगेदर. लवली. मैं इसके लिए हमेशा बोलता हूँ, मतभेद सही चलेगा, मनभेद मत करो. सही है, तो मतभेद इज रिक्वायर्ड. लेट्स जंप फ्रॉम योर जर्नी टू Profiro. What is Profiro? What exactly its mission is? So Profiro is a professional fitness routine
जब मैं सीए कर रही थी, आई रियलाइज कि बहुत सारे सीए एस्पिरेंट्स, सीए प्रोफेशनल्स डिग्री के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, बट they are sacrificing their health. At the cost of their health, they are getting the degree, which in the long run might not be of great use. आप पैसे कमा लोगे, आप डिग्री भी ले लोगे, बट उस पैसे का वो पैसे अगर आपके हॉस्पिटल के बिल्स पे करने में जा रहे, सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मेकिंग मनी? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ वर्किंग सो हार्ड, स्ट्रगलिंग टू डू गेट समथिंग, बट देन द मनी दैट यू हैव अचीव्ड, दैट यू हैव अर्नड, इट्स गोइंग टू पे योर मेडिसिन. सो आई रियलाइज कि यार लोग एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ ये सब कर रहे हैं, विच इज सो रॉन्ग, सो रॉन्ग. अभी अगर शायद अगर आप को बोलेगा कि आप कोई बोलेगा जिम मेंबरशिप ले लो, वो 10,000 की जिम मेंबरशिप नहीं लेंगे, बट अगर डॉक्टर बोलेगा कि 10,000 की टेस्ट करवाने या 50,000 पर डे बेड का कॉस्ट होता है आजकल इंडिया में, दैट पीपल थिंक इट इज चीप बिकॉज डॉक्टर ने बोला करना ही है. सो इंग्लिश में ना एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. जब आप प्रिवेंशन पे ध्यान दोगे तो आपको वो एडिशनल जो खर्चे वो लगेंगे ही नहीं. So I feel that Profero, I started my brand. I started with this intention कि जो professionals है, especially people working in corporates, people working in offices, they have so many health issues. I deal with a lot of clients who go through this. So we started wellness programs for professionals. We are working on content. We are working on content and coaching. Fitness coaching, health related coaching, and mental health, wellness, basically wellness in general. So my motive is to take wellness global. Profero started with professional environment, like in a professional environment. Do you face challenge? Because if I look at India and to some extent UAE as well, आप food stall खोलिए, restaurant खोलिए, it will go and fly. But making a wellness center or a fitness center fly becomes difficult because if you talk to anyone, everyone is busy. यार काम का बहुत प्रेशर है. Correct. Do you face this challenge in your venture? So कभी कभी ऐसा होता है कि लोग तब आते डॉक्टर के पास जब तुम बीमार पड़ते हो. मैं बोल रही हूँ कि अगर पहले ही तुम मेडिकल टाइम टू टाइम टेस्ट करवाओगे तो तुम्हें बीमार ही नहीं पड़ोगे बिकॉज पहले ही डिटेक्ट हो जाएगा. सिमिलरली विद द वेलनेस सेंटर्स, जिम्स है, योगा सेंटर्स है, वेलनेस सेंटर्स है, जब तुम कॉन्स्टेंटली वहां जाते रहोगे आपको उस मोमेंट का वेट नहीं करना पड़ेगा कि अब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, अब आप एक्सट्रीम लेवल के बीमार पड़ गए कि अब तब शायद ये सारी चीजें भी कुछ काम नहीं कर पाएगी. सो आई फील दैट ऑफ कोर्स ओपनिंग अ वेलनेस इंस्टीट्यूट इज डिफिकल्ट. मेजरली द डिफिकल्ट पार्ट इज टू कन्विंस पीपल, टू कन्विंस कि ये तुम्हारे लिए जरूरी है. लोगों को लगता है नहीं, मैं यंग हूँ, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, मैं मेहनत करना चाहता हूँ. एंड स्पेशली दिस हसल कल्चर जहाँ पे लोग फ्लेक्स कर रहे कि आज मैंने 15 घंटे काम किया है, मैं सोया नहीं हूँ. दिस इज नॉट समथिंग टू फ्लेक्स अबाउट, दिस इज नॉट समथिंग टू ब्रैग अबाउट कि तुम बहुत मेहनत करो. आई फील इट इज, ये बेवकूफ़ी है. आपको ये ध्यान देना चाहिए कि वो 15 घंटे आप काम करो तो उसमें से आप कितना रेस्ट भी ले रहे हो, बिकॉज रेस्ट इज मेडिसिन, स्लीप इज मेडिसिन, फूड इज मेडिसिन, सनलाइट इज मेडिसिन, वाटर इज मेडिसिन, ये योगा इज मेडिसिन. ये सारी चीजों पे भी आपको उतना ही ध्यान देना है. हाउ डू यू प्रमोट इट? इस कल्चर में जहाँ हसल ज्यादा चल रही है, कैसे इसको आप प्रमोट करते हैं, कैसे आप इसको बढ़ावा दे पा रहे हैं? फर्स्ट थिंग इज जो जेनजी कल्चर है ना, अगर आपने उनका माइंडसेट समझ लिया, आई फील जेनजी आजकल दे आर एक्चुअली बिकमिंग माइंडफुल इन टर्म्स ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन या फिर स्मोकिंग, दीज थिंग्स. देयर आर टू सेक्टर्स आई वुड से, एक जो शायद उसके बहकावे में आके दिल स्टार्ट डूइंग, एंड द सेकंड पीपल आर रियली एक्चुअली बीइंग वेरी स्मार्ट, बिकॉज इफ यू सी जेनजीज आर रियली वेरी स्मार्ट, दे हैव शार्पर ब्रेन्स, दे विल डू थिंग्स क्विकली. सो एक बार शायद आप उनका माइंडसेट समझ लो, हाउ डू दे थिंक, दे वांट थिंग्स टू लुक कूल, दे वांट थिंग्स टू लुक एस्थेटिक एंड वेरी प्रिटी एंड नाइस. एंड तो अगर आपको प्रमोट करना है, फर्स्ट तो आप उनके लेवल पे आके सोचो कि वो कैसा सोचते हैं, आपकी टारगेट ऑडियंस है वो कैसा सोच रही है. और जब आपकी टारगेट ऑडियंस है वो जो सोच रही है वो आपको पता चल गया, अब आप उनको पिच कर सकते हो कि देखो ऐसा ऐसा है, अभी नहीं करोगे तो आगे पछताओगे. तो आई फील कि जब अगर इसको प्रमोट करना है, सोशल मीडिया प्लेज अ बिग प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप यू कैन बी रियल, यू कैन शेयर रियल स्टोरीज, ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज. सेकेंड थिंग इज कंटेंट से. थर्ड थिंग आई वुड से इज, एक बार कम्युनिकेशन स्किल्स आपने मास्टर कर ली तो आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हो, योगा के लिए हो, एक्सरसाइज के लिए हो, फिटनेस के लिए हो, वेलनेस के लिए हो. डू यू थिंक कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी ये फिटनेस या वेलनेस पहले से बिल्ड करना जरूरी है, एंड इट रिक्वायर्स अ चेंज इन द करिकुलम एटलीस्ट फ्रॉम इंडियन एजुकेशन सिस्टम, कि
ये हमारे बहुत लेट कल्टीवेट होता है. आफ्टर एवरी टाइम इट्स अबाउट एजुकेशन, एजुकेशन पढ़ लो, कुछ बन जाओ, एमएनसी ज्वाइन कर लो. डू यू थिंक दैट ऑल्सो नीड्स अ चेंज, और यू थिंक नो वी आर डूइंग गुड, हमको अपना माइंडसेट ही चेंज करना है बस? दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम. ये दो चीज वो सिखा ही नहीं रहे, जिस दो चीज से पूरी कंट्री की ग्रोथ डिपेंडेंट है. फर्स्ट थिंग इज फिटनेस एंड सेकेंड थिंग इज फाइनेंस. फिटनेस, हेल्थ, क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, वेलनेस के बारे में, योगा के बारे में इतना ध्यान नहीं दिया जाता है. कैंटीन में भी, इफ यू सी, स्कूल के कैंटीन में वड़ा पाव मिल रहा है, जंक फूड मिल रहा है, बच्चा बचपन से ही वो सारी चीजें देख रहा है, उनको उसका इजी एक्सेस मिल जाता है. सो इफ आई हैड टू ब्रिंग अ चेंज इन द एजुकेशन सिस्टम, सबसे पहले आई वुड मेक फिटनेस अ कंपलसरी सब्जेक्ट. न्यूट्रिशन क्या है, फूड लेबल्स कैसे रीड करना है, बहुत सारी चीजें जो हेल्दी प्रमोट की जाती है वो अनहेल्दी होती है. इतना शुगर, मैदा, पाम ऑयल होता है. सो आई फील फिटनेस में बहुत वर्क करना चाहिए शुरू से ही एजुकेशन सिस्टम को. और सेकंड चीज है फाइनेंस. अब अगर सीए आप कर रहे हो या फाइनेंस बैकग्राउंड है तब तो आप सीख जाओगे, बट अगर किसी का फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं है, वो कहाँ से सीखे कि इन्वेस्टिंग कैसे करना है, वेल्थ को मल्टीप्लाई कैसे करना है, या फिर पैसा डबल कैसे करना है, कहाँ लगाना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए. सो आई फील सेकेंड थिंग दैट इंडियन एजुकेशन सिस्टम शुड वर्क ऑन इज द फाइनेंस पार्ट ऑफ इट. लाइक फाइनेंस को एक सब्जेक्ट बना दो, बच्चे को बचपन से ही वो पैसा माइंड डाल दो. If you have given option, मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूँ, and you've been offered by India saying take Ministry of Education, Ministry of Health और Ministry of Finance. ओह, तीनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैंने जो देखा अभी तक. कौन सा लेना चाहेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बचपन से प्रमोट करिए. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, योगा इज इम्पॉर्टेंट. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, पैसा इंपॉर्टेंट है. so I feel I am confused between the two, Ministry of Health and Ministry of what was the third one? एजुकेशन एंड फाइनेंस. No, finance. Ministry of, I'm confused between Ministry of Finance and Ministry of Health. Because I have a background जो CA का भी है and fitness का भी है. But I feel that I would still go for Ministry of Fitness and Health because at the end देखो आप पैसे कमा लोगे, but आपको वो पैसे खर्च करने के लिए you need a fit body. तो जब इंसान फिट रहना सीख जाएगा वो पैसे मल्टीप्लाई कर लेगा. बट बीमार पड़ा है, बेड पे पड़ा है, तो पैसे का क्या करेगा या फिर उसको मल्टीप्लाई कैसे करेगा? आई वुड गो फॉर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ. Lovely. Now let me go back to your media presence. India's number one business channel happened to you. You also got featured in Geo. How exactly it happened? ऐसा क्या हुआ? They reached out to you. You made an application. How exactly it happened? जब आप अपने आप को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डालते हो, जैसे सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन हो गया, एवरीबडी इज वॉचिंग यू. एवरीबडी नोज हु यू आर, आप क्या करते हो, आपने क्या क्या अचीव किया है. दे आर कॉन्स्टेंटली कीपिंग अ टैप ऑन योर लाइफ. भले आपको नहीं पता है, पीपल आर वॉचिंग यू. तो मैंने जब डिसाइड किया था कि मुझे कंटेंट क्रिएशन करना है, लोगों के सामने आना है, आई स्टार्टेड डूइंग योगा, आई स्टार्टेड पोस्टिंग योगा कंटेंट. Somehow it reaches to the right people. Somehow people see you, and when you become the best in your work, people will get you on board. People will be that you have to come to my channel or to my show. So I started creating content and मुझे honestly नहीं पता था, but 2-3 दिन पहले मुझे कॉल आया that इंटरनेशनल योगा डे पे you have to be here, you have to be on a studio and the shoot location is this, time is this. And मेरे को बचपन से ना टीवी पे आना था, जैसे मुझे बचपन से दुबई आना था, लाइक योगा सेशन करने के लिए. मैंने आपको मैसेज किया, मैंने आपको डीएम किया. somehow maybe it might have gone unnoticed, but exactly I would say मैंने मैसेज किया आपको, उसके 10 दिन बाद you reached out saying that we are doing this yoga session and we would love to have you. So I feel कि तुम अपना ट्राई करते रहो, अपनी तरफ से बेस्ट डालते रहो. अगर लोगों को दिख रहा है ना कि आप क्या कर रहे हो, they will reach out to you. Even when Reliance happened, I was featured on Geo Talks where I gave a talk to all the employees pan India for a wellness session. The CMO of Reliance, Rajneesh sir, he reached out to me. He invited me for yoga, for a wellness talk. So I feel कि जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हो और आप सही मेहनत करो, भले आपको पता नहीं कि वहां तक कैसे पहुंचू, भगवान देख रहा है, वो आपको पहुंचाएगा. आप अपनी मेहनत करते रहो. चलिए आपको वापस एक स्पॉट पर डालता हूँ. 4 ऑप्शन देता हूँ, बताइए विच वाज यूरोका मोमेंट फॉर यू. चारों यूरोका है, अगर टॉप पे रखना हो किसको रखेंगे? सीए एग्जाम्स क्रैक किया, फाइनल, बिकेम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट. ऋतिक रोशन पोज फॉर योर पोज, दैट वाज सेकंड. ओके.
going on a business channel, India's #1 business channel पे आना because you wanted always to come on the television. And last is Reliance, the biggest company in India. उनके Reliance Jio पे feature होना. Out of 4, which is your Eureka moment, which would be at the top of the list? I feel other things happened because I was a chartered accountant. जब मैं सीए बनी तो लोगों को रियलाइज हुआ कि यार ये एक लड़की है जो सीए है बट ये फिटनेस का कर रही है. आई स्टार्टेड पोस्टिंग माय कंटेंट ऑन लिंक्डइन. आई स्टार्टेड शेयरिंग माय स्टोरीज. एवरीथिंग हैपेंड बिकॉज आई वाज अ सीए. दो इट माइट नॉट बी रिलेटेड बट आई फील दैट सीए ने जो मुझे सिखाया है जिद्दी बनना, बेस्ट देना, काम में अपना बेस्ट देना, डिसिप्लिन के साथ काम करना, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना. सो फर्स्ट थिंग वुड बी बीइंग सीए. Second thing would be Reliance stock because this was huge. This was something unreal. Like, you know, शायद ऐसी मैं बचपन में मेरे पापा जब मोटिवेशन की बात होती थी तो अंबानी और धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी जी उनकी स्टोरी शेयर करते थे कि उनने ऐसी हम्बल बिगिनिंग्स थी उनकी. और उसी जो कॉर्पोरेशन है जब वो इन्वाइट करती है तो ऐसा लगता है कि है ना, यू आर डूइंग समथिंग राइट इन योर लाइफ. So that would be the second moment. Third moment would be जब बिजनेस चैनल, इंडियाज #1 बिजनेस चैनल का इनविटेशन था. आई टेल यू व्हाई. बिकॉज एवरी मॉर्निंग आई वेक अप. मेरा जो भाई है वो स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत देखता था. सुबह मैं उनकी आवाज़ से ही उठती थी. सुबह उठी और स्टॉक मार्केट का चल रहा है कि आज शेयर ऊपर है, नीचे है, मार्केट डाउन है, ये सारी चीज़ें. तो वहाँ, और ये चैनल को इतने सारे लोग देखते हैं इंडिया में. So that would be the third. And fourth would be, the Hrithik Roshan. Hrithik might not like it, No. but No, but I like Hrithik. But of course, in terms of priority, I think these, of course, 4 best moments आपने बता दिए. मैं खुद confuse हो गई. But I think if I had to give a number to it, it would be to be this. like in the order. Perfect. You are also doing podcasts, and podcast has a way of doing it. जैसे मेरा तरीका होता है to know about the person. I try to get to know more and more about the person. When you do podcast, what exactly you try to achieve? आप किस area पे focus करते हैं? More on knowledge sharing, more knowing the person. What is your style of doing podcasts? So I've done podcasts with politicians, with people from the stock market, and a few CAs. I feel कि जब मैं podcast पे किसी गेस्ट को लाती हूँ, I want the best person to be on my show. जब लोग मेरे व्यूअर्स है वो अपना टाइम देके कुछ सीख रहे, तो the person has to be top notch, ताकि वो उससे ऐसा कुछ सीखे जो शायद वो बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे, they were figuring out. तो मैं शेयर करती हूँ, एक तो कोई एक सेक्टर का एक नीश पकड़ लिया एंड उसके टॉप पर्सन कौन है. सेकेंड थिंग इज ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरीज, समथिंग दैट यू नो ये X से 10X पे कैसे पहुंचे. बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू ग्रो, एवरीबडी वॉन्ट्स टू लर्न हाउ ऑफ इट. दे डोंट वांट टू नो आपने क्या किया, अब कैसे क्या वो बता दो. तो समवन हु कैन शेयर दैट, आई फील दैट्स इट. पीपल जो लोग चाहते हैं, व्यूअर्स चाहते हैं, वो बता दो. तो आई लव शेयरिंग जो शायद जीरो से हीरो बने, उनकी स्टोरीज शेयर करना मुझे बहुत पसंद है. और मेरे पॉडकास्ट का नाम है अनस्टॉपेबल विद सुरभि. तो ऐसी स्टोरीज जहाँ पे इतनी सारी डिफिकल्टीज आने के बाद भी कोई अनस्टॉपेबल कैसे बने, जो वो शेयर कर सकता है. आई होस्ट देम ऑन माय पॉडकास्ट. ऐसा कोई सेलिब्रिटी जिसको आपने होस्ट किया, इट वाज ट्रांसफॉर्मेशन, यू न्यू अबाउट इट, from zero to hero it was there, but still once you ended the podcast, you said it was wow, it was phenomenal, which you did not think about it, and then it got unearthed during the conversation. Aisa kaun celebrity hai? There was this one very special podcast which I shot with Motilal ji Oswal, and I think that podcast, to get him and to talk to him, to learn from him itself was a big thing for me. That podcast actually, उनकी जो story है, if you see, he was an ordinary man and now he has a brand. Like there is an entire metro station on his name. So Motilal Oswal, of course, it is into stock market and broking and that thing. But now the company that he has built, his net worth is 24,000 crore plus. So to have him was that wow moment for me. एंड उनकी जब मैंने स्टोरी जानी, उनसे जब बात की, तब रियलाइज किया कि जब तुम अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट करते हो, अच्छे लोगों से दोस्ती करते हो, लाइक इफ यू नो रामदेव अग्रवाल सर, आई ऑल्सो मेट हिम ऑन लाइक इन द सेम ऑफिस. दे बिकेम फ्रेंड्स. दोनों सीए कर रहे थे, दोनों वो बता रहे थे कि हम
सेम स्कूटी पे जाते थे, लाइक वो मेरे को देखते थे तो मुझे उन्होंने कहा चलो मैं आपको पिक, आप भी मेरे साथ ही चलो, आप भी सेम जगह जा रहे हो, एंड समथिंग लाइक दैट, उनकी फ्रेंडशिप बड़ी एंड नाउ सी दे बिल्ड एन एम्पायर. सो दैट ही टॉट मी कि जब आप सही लोगों से दोस्ती करते हो ना, आप दो दोस्त मिलके बहुत कुछ बिल्ड कर सकते हो. The unity that they have, the thing that they built, for the Indian stock market, insane. Which is that friend other than Hina? Don't mention Hina. जिसको आप चाहेंगे कि हाँ मेरे साथ बिल्ड करे. When you are creating an empire, he or she also creates an empire. So I had this one friend in college, and that friend actually made sure that I do CA. Every time I felt stuck, I used to call this friend. I used to make sure that because I, as a person, जब मुझे कोई मन में कोई चीज बॉदर कर रही है ना, आई वॉन्ट टू क्लियर इट आउट. मुझे बोलना है कि मुझे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, दिस हैपेंड विद मी, इसने ऐसा कर दिया. तो जब मैं सी कर रही थी, ऐसी बहुत सारे इमोशनल अप्स एंड डाउन्स होते हैं, एंड that this one particular friend of mine who has actually seen through it, believed in me, made sure that जब मुझे खुद पे डाउट है, this person believed in me, so that You don't want to name the person on the podcast. No. Okay, perfectly fine. But we wish both of you do that. Thanks. Rapid fire round में चलेंगे and straight away question, straight away answer. जो आपके दिल में आए straight बताइएगा. Your comfort zone, movie or series? None of it, but I still have to choose. If I had to choose one, it would be movies. What one thing which people is considering wrong on yoga side? That it is very slow, boring, and only for elderly people. या जब joint pain है, back pain है, तभी करो. It's very interesting. It will actually give you a lot of peace. What is your social site, Insta or LinkedIn? LinkedIn, because LinkedIn has smart people. I reach out to you on LinkedIn. Podcast or public speaking? Platform पे खड़े होके बोलना चाहेंगे, podcast में you are more comfortable. Public speaking. A book you want to recommend to young generations? The power of your subconscious mind. One superhero or superpower you would love to have yourself. ये आना चाहिए मेरे पास शक्ति, and I'll be a superwoman. A quality? A quality. I feel that quality would be to be ziddi, like a good stubbornness for a consistent period of time. Okay. With good intentions. Next I know, but again I want to hear it. A mantra or quote you live by. जब जिद्दी होगा दिल, जरूर मिलेगी मंजिल. जरूर मिलेगी मंजिल, आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी. If you could bring 3 dream guests from history, 3 guests from history or today who are alive, who would it be on your podcast? Mr. Ratan Tata. I think he is a legend. Second thing would be, and I'm manifesting it with all my heart, soul, all my 11 11s, Narendra Modi ji. And the third thing would be Mukesh Ambani. I want to know how did he build this grand wealth. We wish you that Mr. Narendra Modi and Mukesh Ambani ji features on your talk, and we can say yes, we have had one more podcast with Surbhi, who is doing the podcast for them. Definitely. Okay, one place when you feel burnout or you feel low in life, you will say, okay, visit this place, or at least that is your go-to place to come out of your burnout. I feel temples, it will give you a lot of positivity. People, when they're spiritual, they'll actually get connected to themselves. Other than temples, any other cities, countries? Something around nature. जब आप nature के पास में रहते हो, you feel very overthinking जो है वो बहुत कम हो जाती है. On the beaches, on the hills? Beaches. If your wellness philosophy had a tagline, what would it be? स्वस्थ रहो, मस्त रहो. I love that tagline. If you have been selected to teach yoga to superheroes who are saving the world, whom you will go for? I'll give you the options, or you can choose your version. Superman, Hulk, Spider-Man, all are English versions. आपका कोई हो तो आप अपने heroes बता सकते हैं, other than your father. Okay. I think that would be Narendra Modi ji. Narendra Modi, you actually are, you idolize him. Very much, very, very much. And what exactly is the reason for that? I feel उनकी लीडरशिप में इंडिया की जो इमेज बनी है, जो डेवलप हुई है, इवन इन इंडिया द डेवलपमेंट एंड अब्रॉड, पीपल हैव एक्चुअली started thinking about India as a very good country, as a very developed country with smart people, good culture, and it is because of the man who has actually built that. Wow. You are a chartered accountant. For chartered accountant, finance is core. For you, fitness is core. Other than fitness and other than finance, what other skill sets you will recommend for young chartered accountants
Please ensure you are carrying it. Communication skills, nothing like it. Do you think our Indian chartered accountants lacks communication? And if yes, what they should do about it? I feel a lot of people have this mindset कि MBAs की communication skills CA से better होती है. But I feel there's no career wise or degree wise you cannot differentiate. जितना ज़्यादा आप लोगों से बात करते रहोगे, भले आप CA हो, भले आप MBA हो, आप खुलोगे. You'll open up with people. You'll know how to reach out to random people or how to reach out, talk, just appreciate them कि I like what you're wearing. और तो communication skill अगर किसी को improve करनी है, डोंट पुट योरसेल्फ इन दैट बबल. जाओ स्टेज पे जाओ, अगर जहां मौका मिले ना बोलो. जब आप बोलोगे अच्छी बातें, पीपल अपने आप आपकी बातों में इंटरेस्ट लेंगे. What is your idea of success? आपको क्या लगता है सक्सेस क्या होनी चाहिए किसी के लिए बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? आई थिंक जब रात को सोने जाते हो ना और सेटिस्फाइड फील करते हो ना कि आज मैंने कुछ अच्छा किया, या चलो शांत है, माइंड शांत है, दैट इज सक्सेस. Few minutes back you talked about manifestation, having mentioned Narendra Modi. What is for you manifestation is? जब become a reality or you think सोच सकते हैं और you actually believe in manifestation, सोचा तो होगा. मेरी लाइफ आई वुड से 70 to 80% मैंने लाइफ में जो भी किया है या फिर जो भी अचीव किया है, इट हैज बिन बिकॉज ऑफ मैनिफेस्टेशन. आई विल टेल यू दिस, द रियल लाइफ एग्जाम्पल इज, मैंने आपको DM भी किया था एंड आई वॉज लाइक नो कनेक्शंस, नो रिश्तेदारी, नो. मैं मतलब दुबई में मेरा कोई है भी नहीं, वेरी फ्यू रिलेटिव्स, फार डिस्टेंट रिलेटिव्स. CA का मेरा बैकग्राउंड है. somehow I wanted this to happen. मैंने किसी की स्टोरी और आई सॉ समवन जहाँ पे दुबई के CAs को टैग किया था. आई वॉज लाइक मे बी आई जस्ट वॉन्ट. मैंने भगवान को बोला मुझे चाहिए, मेरा काम है उनको बताना कि ब्रो आई एग्जिस्ट, दिस इज वॉट आई डू, this is my profile, and this is how I can help you. I can bring value to your table. It happened. It got unnoticed, but then God knew that ये लड़की deserve करती है. Few days, just after 7 to 10 days, Shivani, someone reached out to her. You asked her for recommendations. She recommended me. You told me that अरे मैंने आपका DM देखा था. I think everything happens. It's like तुम अपने कर्म करो, फल भगवान पे छोड़ दो, फल की चिंता मत करो. मैंने आपका DM एक्चुअली देखा था एंड इट वाज ऑन द रिकॉर्ड्स. यस यस. बट शिवानी से फिर वापस होके आया कि शुड बी एट वांटेड. ओके, दैट इज समथिंग व्हाट गॉड वांट्स अस टू डू. जो तुम सोचते हो वो होता है. इट जस्ट सही सोचो तो सही होगा. क्या बात है. सिंस यू आर अ योगा कोच एंड यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्हेन वी गिव एग्जामिनेशंस यू नो हाउ स्ट्रेसफुल द स्टूडेंट्स जर्नी इज when appearing for the exams, when preparing for the exams. As a yoga teacher, any breathing techniques, any ways you want to talk to the chartered accountants or CA students to calm them during their exam preparations? First thing is, जब भी आप पढ़ाई करो ना, डोंट पैनिक. बिकॉज क्या, अगर जब आप पैनिक करके पढ़ाई करोगे तो जो पढ़ रहे हो ना वो भी भूल जाओगे, एग्जाम तक याद नहीं रहेगा. उसके लिए आई वुड हाईली रिकमेंड सिट इन साइलेंस एंड मेडिटेट. और जब मेडिटेशन, बहुत लोगों को ओवर थिंकिंग होती है, ध्यान इधर उधर भटकता है, नहीं आता है कैसे करना है, जस्ट सिट इन साइलेंस, अकेले बैठ जाओ एंड फोकस ऑन योर ब्रीदिंग. समथिंग एज सिंपल एज ब्रीद करना कैन एक्चुअली रिड्यूस योर ओवर थिंकिंग सो मच. बिकॉज जब आप खुद के साथ रहते हो तो तुम खुद से बातें करते रहते हो एंड समहाउ यू कैन एक्चुअली गिव योरसेल्फ दैट टेड टॉक और दैट मोटिवेशनल टॉक्स जो आप देना चाहते हो. ब्रीदिंग एक्सरसाइज. सेकेंड थिंग आई वुड से, स्लीप इज मेडिसिन. नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्लीप. आप कम सो के कभी भी ज्यादा नहीं पढ़ाई कर पाओगे. योर बॉडी नीड्स 8 hours ऑफ स्लीप, हैव दैट. थर्ड थिंग इज, खाने को दवाई समझ के खाओ, नहीं तो दवाई को खाना समझ के खाना पड़ेगा. क्या बात है. एक चीज है, जब आप मेडिटेशन करते हैं एंड इट हैपेंस विद मी ऑल द टाइम, इट्स ऑलवेज से कीप योर ब्रेन साइलेंट, मेक इट काम. लेकिन ऐसा होता है उसी वक्त सबसे ज्यादा थॉट्स आते रहते हैं, सबसे ज्यादा हिट करते हैं. व्हाट शुड अ पर्सन डू टू मेक इट मोर कामर? दो यस वी आर सिटिंग इन डार्क, लेकिन ब्रेन चलता रहता है और सबसे ज्यादा उस वक्त चलता है जब उसको बोलते हैं काम हो जा. व्हाट यू डू टू हैंडल दैट प्रेशर? देखो, ब्रेन का काम है सोचना, वो सोचेगा एंड इट इज इम्पॉसिबल टू बी विदाउट एनी थॉट्स. यू विल थिंक समथिंग. बट आई वुड से कि जब आप फिजिकल मूवमेंट करते हो, जब आप जिम जाते हो, जब आप योगा करते हो, आपका पूरा ध्यान थॉट से हटकर आपकी बॉडी पे आ जाता है. यू फील द स्ट्रेच, यू फील द मूवमेंट, पूरा ध्यान मूवमेंट पे हो जाता है. सो फिजिकल एक्टिविटी, आपको स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, प्ले स्पोर्ट्स, आपको योगा, जिम, पिलाटेस, एनीथिंग,
Have any physical activity in your routine. How many minutes of meditation or yoga or pilates, anything? कितने मिनट्स आप सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं सीए फाइनल्स के लिए? 30 to 35 minutes. 30 to 35 minutes they should do With it consistency. with consistency every day Every day. or 5 days in a week. Yes, of course, but depending upon your routine, I would say. Schedule आपका पड़ेगा, schedule क्या, but have a slot. Have a slot. Every day you spend time with yourself. Perfect. Same चीज मैं पूछना चाहूँगा for other chartered accountants जो qualify कर गए हैं, उनको लगा एमएनसी में हम enjoy करेंगे, but अब वापस स्ट्रेस में आ गए हैं. Sitting in the office, what they can do from yoga perspective, yes, we will do it in detail in the evening, but अभी के लिए क्या 3 recommend करेंगे for everyone, all chartered accountants in office, they want to do something on yoga, what you will suggest? मेजरली जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं उनको बैक पेन, नेक पेन एंड जॉइंट पेन बहुत होता है. सो समथिंग अबाउट दैट, जैसे नेक का हो गया, नेक स्ट्रेचेस आपने कर लिए थोड़े बहुत, नेक रोटेशन कर दिए, और ये आप बैठे बैठे भी कर सकते हो चेयर पे. देन मे बी सम एंकल रोटेशन. देन बैक के लिए आई वुड ऑलवेज सजेस्ट एवरी टाइम यू सिट स्ट्रेट. आपका पोस्चर अगर आप बहुत टाइम पर कंटिन्यूसली ऐसे लैपटॉप पे करते रहोगे इट विल फॉर्म दैट शेप. तो सिंपल सिट स्ट्रेट, neck exercise, breathing exercise if you can, and maybe some walk कर लो कि जैसे बहुत टाइम तक अगर बैठे हो, sitting is and you smoking, तो just 1 घंटा 2 घंटा काम करने के बाद take a 5 to 10 minutes of walk. Is something you recommend? Okay, you have trained so many 3,000 professionals you have trained on yoga. What is one myth or one mistake, let me say mistake, which you have seen commonly which 3,000 professionals or professionals normally carry or do it? The biggest mistake is they don't do it with consistency. If you want the results to as per your requirements, you need to be consistent with that. So क्या होता है कि लोग फिटनेस जर्नी स्टार्ट एकदम मोटिवेशन से करते, कल से जिम जाऊंगा, रोज आऊंगा, 4 दिन करेंगे, फिर एकदम फुस. लाइक मे बी जिम हो या योगा हो, वट एवर, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट. एंड एक चीज जो आई वुड लाइक टू से इज आई एम वेरी मच इंक्लाइन टूवर्ड्स हाउ द 1% थिंग. तो जो 1% लोग होते हैं जो एक्चुअली मेक इट टू द लाइफ, उनको पता है कि उनकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है. आप सारे सेलिब्रिटीज को देख लो, सारे हाईली प्रोफेशनल्स को देख लो जिन्होंने एक्चुअली लाइफ में कुछ उखाड़ा है. विराट कोहली हो गए या फिर अंबानीज हो गए, दे एक्चुअली वर्क अ लॉट ऑन देयर हेल्थ. सो जब आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दोगे, 1% जैसा सोचते हैं वैसा सोचोगे हेल्थ को लेके, आई फील यू कैन एक्चुअली बी लिव अ हेल्दी लाइफ. It's only about the health or it's also about the food habits? फूड तो इज डेफिनेटली अ थिंग. मैं बोल रही हूँ कि अगर एक्सरसाइज से आपको सिर्फ 5% रिजल्ट मिलता है, बट 95% ऑफ योर रिजल्ट इज डिपेंडेंट अपॉन द फूड दैट यू पुट इनसाइड योर बॉडी. आप गाड़ी जा रहे हो तो पानी डालोगे तो गाड़ी नहीं चलेगी. यू नीड टू पुट पेट्रोल, यू नीड टू पुट द राइट डीजल. तो वैसा ही सेम है, अगर बॉडी को चलाना चाहते हो तो आप कुछ भी डालोगे तो बॉडी नहीं चलेगी. यू नीड टू पुट द राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन योर बॉडी. What 3 things which you will say stop today, don't eat? 3 things that I would recommend that you should stop today, right now, and which I have also followed in my life. It is 3 white things. First thing is sugar, second thing is maida, and third thing is excessive salt. Excessive salt. Yes. A little bit moderate salt is Yeah, fine. moderate is of course needed sodium के लिए, but yes. How about oil? Palm oil, horrible for your body. So palm oil is basically जो बहुत सारी हार्ट डिजीज होती है, लाइक इफ यू पुट पानी पे अगर आप ऑयल डालोगे इट विल फ्लोट. ऑयल फ्लोट करता है. सेम चीज अगर आप बहुत ज्यादा ऑयली फूड अपने बॉडी में डालोगे, ब्लड में फ्लोट हो जाता है, इट डज नॉट मेल्ट विद द ब्लड बेसिकली. तो वो ब्लड पैसेज रुकावट हो जाती है. हार्ट डिजीजेज ये सब होता है. वंस इन अ वाइल इज फाइन, यू कैन एंजॉय इट, बट डोंट मेक इट अ रेगुलर हैबिट कि कुछ नहीं मिल रहा है बस गए और यू डिपेंड अपॉन दैट. इमोशनल ईटिंग इज हॉरिबल. Is oil healthy or not healthy at all, irrespective of any kind? Your body needs some amount of fats, तो some amount is healthy. प्रॉब्लम तब होती है कि जब आप कैलोरीज पे काउंट नहीं रखते हो और बहुत सारी ऑयली चीजें खा लेते हो एक साथ. सो ऑयल, एक्सेसिव ऑयल इज बैड. क्वालिटी ऑल्सो इज उस पर भी डिपेंड करता है. पाम ऑयल इज हॉरिबल. सारे जो चिप्स है, पैकेट्स फूड है, उसमें पाम ऑयल यूज करते हैं. सस्ता होता है, ज्यादा टाइम तक टिक जाता है. सो इट्स बैड. पाम ऑयल इज It's bad. You said interesting about calories. बैड. Is health a maths of calories, what you are intaking versus what you are exerting? Or you think, no, it's a science, it will take time and it will be done? सो फर्स्ट थिंग इज हर खाने में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ कैलोरीज होती है. तो जिनको भी वेट गेन करना है या वेट लॉस करना है या वेट स्टेबल रखना है, इफ यू आर समवन हु इज वेरी मच इंक्लाइंड टुवर्ड्स दैट, देन यू नीड टू कीप अकाउंट ऑन ऑन द कैलोरीज. तो I feel calories, of course, health is a game of number, but you need to understand this number कि ये कैसे work करता है.
What's your reset course? You must getting tired. Will be getting tired sometime. Mm. Something. What is your reset mechanism? What you do to reset yourself? Sleep. Sleep. You love that 8 I- hours of sleep. Yes, to I ensure. no compromise. Do you believe well-being gives professional a competitive edge, or you think no, it's required only for yourself and can be skipped for some time? What? Wellness. Okay. Wellness for professional is a must, Hmm. or it's like with age it is required, not now. It's a must. Side, as I said, prevention is better than cure. सही time पे आप सही action करोगे तो आगे जाके your future self will thank you. How do you integrate yoga principles into the world of high stress finance or business? Yoga pills. Principles. Okay. योगा के प्रिंसिपल्स को हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट में कैसे इनबिल्ड करेंगे, कैसे उस इंडियन क्राउड को, इंडियन यूथ को यू विल ब्रिंग इट टू योगा एंड वेलनेस? योगा ने एक चीज सिखाई है कि लाइफ में कुछ भी चीज अगर आपके हिसाब से नहीं हो रही है तो तुरंत रिएक्ट मत कर दो. डोंट बी, जस्ट बी काम. So I think that one thing everyone should learn. Of course, it is difficult. It takes time. But once you've mastered that art of not instantly reacting to any unfavorable situation, that is one thing that yoga has taught me. That one principle. Perfect. Now, one last thought before we conclude. I have seen that your father is your hero, right? Today, when you are sitting here, you look at the camera, assuming your father's look is hearing you. What one thing which you could not say till now want to say to your father on the camera? I want to say that thank you so much for always inspiring me to think big and always believing in me more than I believe in myself, and always seeing me as a woman who is actually ruling the world. So आप इतना सोचते हो इतना मेरे बारे में, and you make sure that मेरी बेटी दुनिया के हर कंट्री में जाके योगा सेशन ले. सो आई थिंक वो जो आपका सपना है, आप जो सपने मेरे लिए देख रहे हो, आई विल मेक श्योर कि मैं उन सारे सपनों को पूरा कर सकूं. एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ ग्रेट डैड. आई होप वी आर फादर्स एंड डॉटर in every life with some less restrictions. Thank you, Surbhi. It was lovely having you. I enjoyed every minute of the talk with you. Thank you so much. Thank you. Thank you.